Hello everyone, this video is for class 11th AI students and we will continue third unit, that is Python programming. In this video we will discuss the topic that is control flow statements in Python, and then we will discuss its subtype, that is selection statement, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंडीशनल स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन डिटेल, जिसमें कि इफ़ है, इफ़ एल्स है एंड इफ़ एल्स लैडर वी विल discuss. Actually it is called if elif else ladder. So we are going to discuss these three topics, and in next video we will discuss this looping statements. So let's begin. First we are going to understand the meaning of control flow statements. So control flow statements means the order in which the statements of the program are executed. फॉर एग्जाम्पल कि जो भी प्रोग्राम है उसमें हर एक लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट हो रही है ना सीक्वेंस, or some lines are skipped, or maybe some lines are repeated. So how the statements of the program are executed, that is known as control flow statements. Till now the programs you have created have followed a basic step-by-step progression where each statements execute in a sequence every time. So इससे पहले जो भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं, whether it is area of rectangle or other programs, सो यू मस्ट हैव सीन, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में इनपुट वाला भी प्रोग्राम देखा था, लाइक दिस वन. सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वाज एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन इन अ सीक्वेंस. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है तो पहले इंटरप्रेटर इसे इंटरप्रेट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ एंड देन सेवन्थ. ऑल द स्टेटमेंट्स वर एग्जीक्यूटेड. कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं हुआ था, कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं हुआ था. ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन and only once. So that is called sequential statement. Now we will discuss selection statements. Selection statements means which are executed based on a condition. If condition is true, then some part of code will execute. If condition is false, then another section of code will execute. So we'll see here. However, there are many practical programs where we have to selectively execute specific sections of the code और इटरेट ओवर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम. तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कंडीशन के बेसिस पे कुछ पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ स्किप हो रहा है, दैन दोज आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट. और अगर कंडीशन के बेसिस पे एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है बार बार इटरेट हो रहा है, दैन दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड looping statements. Now let's discuss selection statements in detail. Selection statements, there are three types of selection statement. You can see if else and if else ladder, या फिर हम बोल सकते हैं if else ladder. The if else statement evaluates test expression and the statements written below will execute if the condition is true, otherwise the statements below else will be executed. So for example, if we will see this, so here test expression will be given. For example, हमने लिया है num equals to 18. We have taken a number जिसकी वैल्यू 18 है. If I am going to give the test expression, जिसे हम condition भी बोलते हैं, if I am going to write num is greater than 18, तो जैसे ही if keyword आता है, it means it is a conditional statement or selection statement. So when there is a if keyword, so it is going to check the condition. num is greater than 18, तो num की वैल्यू 18 है. 18 is greater than 18? No. ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे? फॉल्स. सो व्हाट इज गिवन हेयर? व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, देन एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, और जब कंडीशन ट्रू होती है देन इफ पार्ट इज एग्जीक्यूटेड. Now what is if part and what is else part? The lines which are written, the statements which are written inside if के बाद जो भी statements लिखे होंगे with some indentation. Okay, so you can see here indentation is used to separate the block. Indentation means the space which is left before the lines. For example, I am going to write here age equals to age plus 7. Print age. So I have left some space before these two lines. तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन. सेम इंडेंटेशन वाले जो भी स्टेटमेंट्स हैं दे आर इन वन ब्लॉक, और ये इफ़ के अंदर है विथ सेम इंडेंटेशन. इट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इफ़ का पार्ट है. ऐसे अगर हमें एल्स के पार्ट में कुछ लिखना है कोड जो कि एल्स के टाइम पे एग्जीक्यूट हो, देन आई हैव टू लीव सम इंडेंटेशन, और सेम इंडेंटेशन पे आई विल राइट द स्टेटमेंट्स.
अगर आपको एक स्टेटमेंट अब ऐसा लिखना है जो इफ़ का भी पार्ट ना हो, एल्स का पार्ट भी ना हो, सो यू विल राइट इट फ्रॉम हेयर। तो ये इंडेंटेशन ना छोड़ के आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डायरेक्टली लाइन लिखोगे, सो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस एल्स ब्लॉक। तो अगर आपको कोई भी लाइन लिखनी है जो एल्स ब्लॉक का पार्ट ना हो, देन यू शुड राइट इट विदाउट इंडेंटेशन, और अगर एल्स का पार्ट लिखना है देन देयर शुड बी सम indentation left. Now we are going to see the syntax of all the three types of selection statement. जैसे कि हमने input का भी syntax देखा था, so we should know the structure, the rules for writing any statement. For example, input का we can revise कि क्या था syntax. We write variable name equals to input function, and then we will write the message here which we need to display to the user. और ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है देन वी राइट इंटीजर, अगर फ्लोट में कन्वर्ट करना है देन वी यूज़ फ्लोट फंक्शन। ऐसे ही अब हम इफ़ का सिंटेक्स देखते हैं। सो पहले हमें क्या लिखना होता है, इफ़ कीवर्ड। सो इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले और वी वांट टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, तो अगर हमें ऐसा करना है कि कंडीशन के बेसिस पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है देन वी यूज़ इफ़। फॉर एग्जाम्पल हमें डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स के मार्क्स, बट सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले नहीं करने, उनके डिस्प्ले करने हैं जिनके 90 अबव आए। तो यहाँ पे कंडीशन है कि 90 अबव वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले करने हैं। सो इस केस में या फिर ऐसे केसेस में वी यूज़ इफ़ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम इफ़ लिखते हैं देन वी राइट द कंडीशन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मार्क्स जिनके क्या आए हैं 90 से ज़्यादा है, सो आई विल टेक मार्क्स वेरिएबल जिसमें हम स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करेंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू कंपेयर इट दैट इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 एंड देन वी पुट कोलन, और फिर इंडेंटेशन के बाद आई विल राइट द इफ़ ब्लॉक। इफ़ के ट्रू होने पे, इफ़ के साथ जो कंडीशन है उसके ट्रू होने पे मुझे जो भी एग्जीक्यूट करवाना है आई विल राइट हियर। So in this way we can mention the condition and then we can mention the if block. अगर आपको कोई और स्टेटमेंट लिखना है आप एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो लाइक प्रिंट एंड ऑफ इफ़। तो अब क्या होगा, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, किसी स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए हैं या 91 आए हैं, सो व्हाट विल हैपन, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम इंडेंटेशन हमने इससे पहले लीव किया है। सो दे बोथ आर इन इफ़ ब्लॉक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, किसी के मार्क्स जो हैं वो 90 आए हैं, तो 90 ग्रेटर दैन 90, नो ये फॉल्स है, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर ये हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, सेट ऑफ कोड लिखा है, तो इस केस में अगर किसी के नंबर जो है 90 से कम आए हैं या 90 आए हैं जिसके वजह से कंडीशन फॉल्स हो रही है, सो आई हैव रिटन मार्क्स ग्रेटर देन 90। और अगर किसी के 89 मार्क्स आए हैं या 90 आए हैं, तो इन दैट केस मार्क्स आर नॉट ग्रेटर देन 90। तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और नॉर्मली एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, बट यहाँ एल्स है नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे विच स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, एल्स वन। तो एल्स इसके साथ मेंशन नहीं होता है। फर्स्ट टाइप का जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो इफ़ है, तो इस केस में क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इफ़ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स नहीं लिखा है तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम मार्क्स इक्वल्स टू 70, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 90 प्रिंट हेलो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देयर विल बी नो आउटपुट, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है बिकॉज दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। 70 मार्क्स 70 है, 70 ग्रेटर देन 90 नो, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ इफ़ ब्लॉक। अगर आपको लास्ट में लिखना है एंड, कि अगर फॉल्स भी हो कंडीशन तब भी ये डिस्प्ले करे कि प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया, जिससे कि यूज़र को पता चले कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब प्रोग्रामर को पता चले कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, कोई एरर नहीं थी, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एंड। अब ये जो प्रिंट एंड स्टेटमेंट है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस इफ़ ब्लॉक। ठीक है, ये इफ़ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इंडेंटेशन के साथ नहीं लिखा गया, ये बाहर है, ये इफ़ ब्लॉक से बाहर है, क्योंकि इसमें हमने इंडेंटेशन नहीं लीव किया है। सो हेयर इफ़ यू विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ, जिसमें हमने प्रिंट एंड कर दिया है, अब इसका आउटपुट जो है एंड आएगा। सो इन दिस वे इफ़ स्टेटमेंट वर्क। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स इज़ ऑल्सो अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसमें अगर आप कंडीशन दे रहे हो नाम इज़ ग्रेटर दैन 18,
एंड नम की वैल्यू है 17। सो कंडीशन इज़ फॉल्स। इस केस में जो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट था, ओनली इफ़ स्टेटमेंट जो था, उसमें कंडीशन फॉल्स होने पे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। बट इस केस में क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सो इफ़ यू वांट टू मेंशन टू एक्शंस, कि टू एक्शंस में से कोई एक एक्शन परफॉर्म हो बेस्ड ऑन कंडीशन, तो हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। अगर हमें एक ही एक्शन परफॉर्म करवाना है बेस्ड ऑन द कंडीशन की कंडीशन ट्रू हो तो ही एक्शन हो, वरना कुछ भी ना हो, देन वी यूज़ इफ़। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट, वी वांट टू टेक वन एक्शन जो कि है नंबर इज़ ग्रेटर दैन 18, हमें ये प्रिंट करवाना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, नंबर इज़ लेस देन 18 और इक्वल टू 18। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्स ब्लॉक में प्रिंट नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 18। सो यहाँ पे हमने दो एक्शन मेंशन किए हैं जिसमें से एक परफॉर्म होना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो ऐसे केसेस में आप इफ़ एल्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो आपका आउटपुट आएगा दिस वन। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आपकी कंडीशन जो होती है फॉल्स होती है। नाउ इफ़ यू आर हैविंग मल्टीपल कंडीशंस, अब आपके पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं है। जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन होती है और उसके ट्रू या फॉल्स होने पे कोई एक्शन लेना होता है, देन वी यूज़ इफ़ एल्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, मल्टीपल कंडीशंस होती है, देन वी यूज़ इफ़ एलिफ एल्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे सीधे लिख दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो हम लिखेंगे इफ़ लेट्स से num equals to 17 only, we will write if num greater than 18 print number is greater than 18। अब हमें लिखना है equals to elif num equals to 18। जो हमें कंपैरिजन करना होता है कि दो वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। इफ़ num equals to 18 print number is equal to 18, तो ये मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। सो हेयर वी हैव टू कंडीशंस, और लास्ट में अगर ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल्स टू भी नहीं है तो क्या हो जाना चाहिए, एल्स। एल्स के सामने हम कोई कंडीशन नहीं लिखते हैं। एल्स मीन्स कि जब ऊपर वाली कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स प्रिंट नंबर इज़ स्मॉलर देन 18। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ इफ़ एलिफ एल्स, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है फॉर कंपैरिजन और जिसके बेसिस पे हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। नाउ सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर रिलेटेड टू दीज सिंटेक्स, दीज स्टेटमेंट्स। Asmita with her family went to a restaurant, determined the choice of food according to the options she chooses from the main menu. Case 1, all members are vegetarian, they prefer to have veg food, no other options, menu veg। तो यहाँ पे उसे कोई और ऑप्शन नहीं देना है प्रोग्राम में, सिर्फ वेजिटेरियन वाला ऑप्शन देना है। और अगर नहीं है कोई वेजिटेरियन तो उसको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगा मेन्यू में। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अ चॉइस वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जिसमें कि यूज़र बताए कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो ओबियसली यहाँ पे या तो वो वेजिटेरियन ऐड कर सकता है या नॉन वेजिटेरियन अपनी चॉइस ऑफ फूड दे सकता है। और जब यूज़र ने ये इनपुट किया वेदर ही इज़ वेजिटेरियन और नॉट, तो वो चीज़, वो चॉइस उसकी कहाँ पे जानी चाहिए, एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे चॉइस वेरिएबल लिया है जिसमें हम यूज़र से उसकी चॉइस या उसकी प्रेफरेंस मांग रहे हैं। देन अब हमें इस चॉइस को कंपेयर करवाना है कि वेदर दैट पर्सन इज़ वेजिटेरियन और नॉट। तो हम क्या करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, जो भी वेरिएबल आपने यहाँ यूज़ किया उस वेरिएबल को लिखेंगे इक्वल्स टू वेज। सो फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने वेज एंटर किया तो यहाँ पे कंपेयर होगा चॉइस इक्वल्स टू वेज, येस चॉइस की वैल्यू वेज है, वही स्टोर हुआ है यहाँ। इफ़ ट्रू, ये ट्रू हो गया तो अब ये प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू वेजिटेरियन फूड हाउस। अगर पर्सन ने कुछ और एंटर किया, लेट्स से नॉन वेज, सो व्हाट विल हैपन, दैट टाइम नो आउटपुट विल बी डिस्प्लेड, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नो आउटपुट, क्योंकि फॉल्स होने के लिए एज ब्लॉक हमने लिखा ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन जिसमें मेन्यू में दो ऑप्शंस आएंगे वेज और नॉन वेज,
तो अगर यूज़र ने वेज एंटर किया तो इट विल बी डिस्प्लेड वेलकम टू वेजिटेरियन फूड हाउस। अगर यूज़र ने कोई और स्ट्रिंग, वेज स्ट्रिंग के अलावा कोई भी स्ट्रिंग, येस नो कुछ भी एंटर किया, सो व्हाट विल हैपन, एज ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको डिस्प्ले हो जाएगा वेलकम टू नॉन वेजिटेरियन फूड। तो देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम का एक ड्रॉबैक है कि अगर यूज़र ने वेज एंटर किया चॉइस ऑफ फूड में तब तो ये आ जाएगा। अगर उसने कुछ भी और लिखा, चाहे वो इटालियन हो, चाइनीज़ हो, है ना, चॉइस ऑफ फूड में उसे नहीं समझ में आया कि मुझे क्या एंटर करना है, क्योंकि एक तो यहाँ पे दिए नहीं ऑप्शंस। या तो एंटर द चॉइस ऑफ फूड के बाद क्या होना चाहिए था, वेज और नॉन वेज भी मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए था कि यू हैव टू सेलेक्ट ओनली आइदर वेज और नॉन वेज। बट यूज़र को नहीं पता, अगर उसने कुछ भी और एंटर किया वेज के अलावा, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं चॉइस को वेज से, अगर चॉइस VEG लिखा यूज़र ने देन इट विल बी प्रिंटेड, अदरवाइज़ कुछ भी और किया तो उसको मिलेगा वेलकम टू नॉन वेजिटेरियन फूड। सो ये हम प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। लेट्स सी। नाउ आई हैव रिटन दिस प्रोग्राम इन जुपिटर नोटबुक। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट। नाउ इट इज़ आस्किंग मी फॉर द चॉइस ऑफ फूड. If I am going to write VEG and press enter, you can see this message is displayed. Now again I am going to run this and I will write even yes. So you can see जब yes लिखा तो obviously ये choice equals to वेज नहीं था, क्योंकि मैंने चॉइस में येस स्टोर किया और येस इक्वल्स टू वेज नहीं है, दोनों स्ट्रिंग नॉट इक्वल है। सो यू कैन सी एज ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, जिसमें आ गया आपका वेलकम टू नॉन वेजिटेरियन फूड हाउस। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट विद डिफरेंट इनपुट वैल्यूज। I have executed it again and I am going to write capital VEG. So let's press enter. You can see even capital V लिखा है तो उसको भी वो different ले रहा है. So what is done now? Again else block is executed. तो capital VEG जो है small VEG के equal नहीं है. So else block is executed. So this is the drawback of this program कि proper program नहीं है. User can enter anything. उसे कोई guidance भी नहीं मिली है कि उसे क्या enter करना है. Now we will see case 3. Family members can choose variety of options. So in this program we can see कि यहाँ पे पहले मेन्यू में प्रिंट किया है कि उसे क्या सेलेक्ट करना है। तो ये एक प्रॉपर प्रोग्राम है कि पहले प्रिंट फंक्शन यूज़ करके वी हैव डिस्प्लेड कि मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सो ऐसे ही पुराने जो ये केस 2 और केस 3 वाले प्रोग्राम हैं, इनमें भी पहले मेन्यू मेंशन होनी चाहिए थी यूजिंग प्रिंट फंक्शन की मेन्यू वेज, नॉन वेज एंड मिक्सड। नाउ यूज़र विल एंटर आइदर ऑफ दीज 3, इनमें से कोई भी एंटर करेगा तो वो किससे कंपेयर होगा, चॉइस से। तो यहाँ पे हम अगेन यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू और वो वैल्यू जो है चॉइस पे स्टोर होगी। देन चॉइस इक्वल्स टू वेज, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो यहाँ कंपेयर करेगा। ये अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र ने एंटर किया है नॉन वेज, सो विच पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, यहाँ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में दिस इज़ फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकेंड वाले में जाएगा इट इज़ ट्रू, सो दिस वन विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर पर्सन ने मिक्स्ड लिखा है, सो ऑब्वियसली फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स, सेकेंड भी फॉल्स, तो ये आउटपुट आएगा। अगर उसने इन दोनों के अलावा वेज और नॉन वेज के अलावा कुछ भी और लिखा है तो आपका एज ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। वेज लिखने पे और नॉन वेज लिखने पे ये दोनों एग्जीक्यूट होंगे, वेलकम टू वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। इसके अलावा अगर उसने कुछ भी लिखा तो एज ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, क्योंकि जैसे ये दो कंडीशन फॉल्स हुई देन एज ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, देन सेकंड होती है, अगर कोई थर्ड कंडीशन होती है दोबारा LF यूज़ करके वो चेक होती है, अगर वो भी फॉल्स होती देन एज ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है, ट्राइंगल की तीनों साइड लेनी है यूज़र से। सो वी कैन टेक इट यूजिंग इनपुट फंक्शन। आप इनपुट फंक्शन को क्लोज कर सकते हैं फ्लोट फंक्शन में या फिर इंट फंक्शन में। सो इफ़ यू वांट इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू तो आप उसे इंट कर सकते हैं। हाउएवर लेंथ जो होती है साइड्स की ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी इन डेसिमल पॉइंट ऑल्सो, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट फंक्शन। सो यहाँ पे हम फ्लोट फंक्शन कर रहे हैं इनपुट के बाहर। सो वट एवर यूज़र विल एंटर वो फ्लोट में कन्वर्ट होके साइड वन वेरिएबल में स्टोर होगा। ऐसे ही सेकेंड लेंथ यूज़र से इनपुट लिए और थर्ड साइड की लेंथ यूज़र से इनपुट लिए बाय डिस्प्लेइंग दीज 3 मैसेजेस। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू चेक
कि ये ट्राइंगल जो है ये आइसोसलीस है, स्केलन है या इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ़ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी विल राइट साइड वन इक्वल्स टू साइड टू, साइड वन और साइड टू इक्वल हो और जो रिजल्ट आए वो साइड थ्री के भी इक्वल हो। सो साइड वन इक्वल्स टू साइड टू इक्वल्स टू साइड थ्री। तो यहाँ पे ये तीनों साइड को कंपेयर कर रहा है, अगर तीनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा एंड दिस विल बी डिस्प्लेड। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, सो ऑब्वियसली नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि क्या पता आइसोसलीज हो। सो वी आर गोइंग टू मेंशन द कंडीशन साइड वन इक्वल्स टू साइड टू और साइड वन इक्वल्स टू साइड थ्री, कि साइड वन और साइड टू इक्वल हो, या फिर और क्या होता है इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो होल रिजल्ट ऑफ होल एक्सप्रेशन विल बी ट्रू ओनली। तो अगर इनमें से कोई भी एक ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू हो गई तो और के वजह से क्या होगा, पूरा कंडीशन जो है दैट विल बी ट्रू। सो इफ़ साइड वन इक्वल्स टू साइड टू और साइड वन इक्वल्स टू साइड थ्री और साइड टू इक्वल्स टू साइड थ्री, तो इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो होल कंडीशन विल बी ट्रू और ये प्रिंट हो जाएगा इट इज़ एन आइसोसलीस ट्रायंगल। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो थर्ड ऑप्शन तो स्केलन का ही है, सो हेयर स्केलन ट्रायंगल विल बी प्रिंटेड। तो ये एक प्रोग्राम है जो बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल डिस्प्ले कर रहा है कि वेदर ट्रायंगल इज आइसोसलीस, इक्विलेटरल और स्केलन। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़ एल इफ एल्स। आई होप आपको ये सिलेक्शन स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्राई अ प्रोग्राम जिसमें आप टू नंबर्स कंपेयर करवा रहे हो। यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स, अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकेंड नंबर है तो यू शुड डिस्प्ले दैट फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अगर सेकेंड नंबर ग्रेटर है तो सेकेंड नंबर ग्रेटर, अगर दोनों इक्वल है देन दोनों इक्वल। सो यू कैन सी देर आर थ्री सिचुएशंस। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इफ़ एल इफ एल्स। सो लेट्स बिगिन। पहले हम यूज़र से क्या करेंगे, वी हैव टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। तो हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक इंटीजर नंबर। सो विल राइट इंट इनपुट एंटर फर्स्ट number. Now the same line we have to write for second number also, but हम num1 को क्या कर लेंगे, we will write num2. num1 की जगह आ जाएगा आपका num2 and first number की जगह you will replace second number. So user has to first enter first number, उसके बाद second number. Now कंपैरिजन हैज़ टू बी डन। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ कीवर्ड, इफ़ नाउ कंडीशन num1 ग्रेटर देन num2। इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन यू हैव टू डिस्प्ले प्रिंट। हम पहले वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर लेते हैं, कॉमा इज़ ग्रेटर देन num2। सो इन दिस वे यू कैन मेक द प्रोग्राम। Now elif num1 equals to num2 print num1 is equal to num2। और अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं है कि num1 ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है num2 के, देन एज लास्ट में क्या होगा, फिर स्मॉलर होगा। So you can write num1 is less than num2, then num2. So our program is done. Now we are going to execute it. यहाँ पे brackets, there should be two parentheses, so there is syntactical error. We have removed. Now shift enter. Now we are going to enter first number, let's say 50, second number 40. So you can see which part is executed, 50 and 40. तो 50 ग्रेटर देन 40, येस। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, क्योंकि num1 हमने विदाउट कोट्स लिखा है तो num1 की वैल्यू आई दैट इज़ 50 इज़ ग्रेटर देन 40। सो इन दिस वे यू कैन मेक द प्रोग्राम्स यूजिंग इफ़ एल इफ एल्स। ऐसे ही अगर आपको डिस्प्ले करना है वेदर अ पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट, और फॉर अप्लाइंग ड्राइविंग लाइसेंस वेदर अ पर्सन इज़ एलिजिबल और नॉट, तो आप वहाँ पे लिखेंगे इफ़ एज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, तो प्रिंट हो जाए यू आर एलिजिबल।
एज नॉट एलिजिबल। तो एज आपको यूज़र से खुद लेनी पड़ेगी कि एज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज। सो इस तरीके से आप प्रोग्राम ट्राई करना। एंड इफ़ देर इज़ नो डाउट एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। We are going to finish this chapter very soon. Thank you for watching this video.